Good morning, friends. It is class number 4 of chapter number 13, which is probability. In previous class, we had started with the independent events, and before that, we had done conditional probability, and after that, multiplication theorem on probability. After that, we had also done the independent events. We had just started the independent events. I am just reminding you once again what are the independent events. यानी those if E and F are two events are said to be independent if occurrence of one does not depend on the other. And for if we have two independent events, we have for two independent events we must have probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. तो आपको कहीं पे चेक करना है कि whether two events A and B are independent, तो you must have probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Now, as you know that we had already done example number 10 in previous class. So I am starting with example number 11. Example number 11, which is given that an unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first row. A is, first of all, an unbiased die is thrown twice. So total outcomes S is equal to 1 1 2 6 6. That is 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. 1 1 1 2 1 3 and 1 6 तक, फिर 2 1 2 2 तो 6 6 तक. तो that is number of sample space is 36. Now A is the event which is given by, what is given? A odd number on the first row. Odd number on the first row. On the first row. Odd number on the first row. The odd number on the first row, that is 1 1 1 1 2 1 3 and 1 6 तक. ऐसे ही 3 1 से लेके 3 6 तक आएगा और 5 1 से लेके 5 6 तक. तो odd number on first row, so that is probability of A is those are 6 to 18 upon 36, right? And what is B event? B is the event given by, what is B? Is the odd number on the second row. Odd number on the second row. Second row. Odd number on the second row. That means second row में आपका odd number आना चाहिए. तो किससे आएगा? 1 1 1 3 1 5. ठीक है. फिर 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5 4 1 4 3 4 5 5 1 5 3 5 5 and 6 1 6 3 6 5. So those are the events. The again probability of B is, which is given by 18 upon 36. Now get A intersection B. What will be A intersection B? So A intersection B is common element of these two. Common element of these two में आ जाएगा 3 1 1 1 भी आ जाएगा 1 1 और 1 3 1 5 1 1 1 3 1 5. फिर ऐसे ही देखते हैं हम 2 में तो नहीं आएगा 1 1 1 3 1 5. फिर 3 1 3 3 3 5 3 1 3 3 3 5 जो कॉमन है ना, और 5 1 5 3 5 5 5 3 5 5. तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? Let us see. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So probability of A intersection B is 9 by 36, right? Now
we have to check whether the events A and B are independent or not. Now for independent event, now get probability of A into probability of B. What is probability of A into probability of B? Let us see. So probability of A into probability of B. Probability of A 18 by 36 into 18 by 36. That means 1 by 4, or which is equal to probability of A intersection B. So it means when probability of A into probability of B is equal to probability of A intersection B, that means A and B are, therefore A and B are independent events. Right? So this was example number 11. Yes, now we have another example, which is example number 12. That is 3 coins are tossed simultaneously. When 3 coins are tossed, तो number of sample space would be 2 to the power 3, that is 8. देखो कॉइन वाले केस में 2 to the power n होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और डाइस वाले केस में 6 to the power n होता है, राइट? तो 8 आउटकम्स देखो कैसे निकलता है जब हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं, या 3 कॉइन्स को एक टाइम टॉस करते हैं, दैट इज सेम सैंपल स्पेस. तो इस वाले केस में देखो कैसे आता है. एक तरीका होता है हमारे पास कि हम जैसे 8 है ना, तो 4 हेड और 4 टेल लिख देंगे पहले, फिर 2 हेड 2 टेल्स, 2 हेड 2 टेल्स, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल head tail. So these are the outcomes, sample space, right? Now we have 3 head. There are 3 events. Question is, consider the event 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E 3 head or 3 tails. F is the event 2 head, at least 2 head, and G is the event at most 2 heads. Of the pairs EF, EG और FG, which of the which are independent? Okay, हमने दो पेयर करके देखना है कि कौन कौन सा पेयर जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट? तो 3 हेड और 3 टेल्स, तो 3 हेड और 3 टेल्स में आ जाएगा तीनों हेड आगे और तीनों टेल्स आगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 2/8. फिर एफ में एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हों, तो कम से कम 2 हेड हैं, तो 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, HHT HTH और THH, एंड ये तो 2 हेड वाले, कम से कम 2 हेड या तीनों हेड ये आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा F, दैट इज 4/8. नेक्स्ट इज G, एट मोस्ट 2 हेड्स. एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है, 0 हेड भी हो सकता है. तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में कितने होंगे? HHT HTH और THH, ये तो 2 हेड हो गए. एट मोस्ट 2 हेड बोला है ना, तो 2 हेड हो सकते हैं मैक्सिमम, 1 हेड भी हो सकता है, तो 1 हेड वाला करो, TTH THT और HTT. और एट मोस्ट 2 हेड में मैक्सिमम 2 हेड वाले भी, 1 हेड वाले भी, और 0 हेड मतलब सारे टेल. तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? प्रॉपर्टी ऑफ G इज 1 2 3 4 5 6 7/8, राइट? अब निकालते हैं हम E इंटरसेक्शन F. व्हाट इज E इंटरसेक्शन F? E इंटरसेक्शन F देख लेते हैं, पहले सभी निकाल लेते हैं. E इंटरसेक्शन F ये तो आपने कर लिया होगा. अब देखते हैं E इंटरसेक्शन F. तो व्हाट इज E इंटरसेक्शन F? कॉमन एलिमेंट ऑफ E एंड F. E एंड F का कॉमन एलिमेंट देखो, HHH आएगा बस, तो probability of E intersection F is 1/8. and F intersection G निकालो. F intersection G,
एफ और इसका जी का इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच एच टी और एच टी एच टी एच एच, यही दोनों कॉमन आएगा। देखो इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज 3/8 और ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी 2000 ई और जी का इंटरसेक्शन, ई और जी का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा जो इन दोनों में कॉमन, तो दैट इज टी टी टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी इज 1/8. Now we have to check whether which pair of these events are independent. मतलब पेयर मतलब E और F है या F G है या G E है। जब हमने ये सारा कुछ निकाल दिया, ये आपने खुद करना है कि कौन सा पेयर इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट? ओके, यस, नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 30। ये बेटा आपने कंप्लीट करना है, इसमें से आपने चेक करना है कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब जैसे आपने ई और एफ को चेक करना है तो पहले प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ करके देखो, वो अगर प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं है। फिर ऐसे ही आप एफ और जी को चेक करके देखेंगे, फिर ऐसे ही आप ई और जी को चेक करके देखेंगे, ठीक है? ओके, 13th example. Thirteenth example. Prove that E and F are independent events. Then so are the events E and F dash. If E and F are independent, so since E and F are independent events, then क्या होता है हमारे पास कंडीशन, प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये है ना कि फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B वी मस्ट हैव प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू यस। तो फॉर सिंस E and F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then property of E intersection F is equal to property of E into probability of F. Let it is equation number 1. Now we have to show, then so are the events E and F is. So to prove E and F dash are also independent events. ठीक है, E and F are, तो that is what we have to show, that is property of E intersection F dash is equal to property of E into property of F dash, right? अब करते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज probability of E intersection F dash. This can be written as probability of E माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये तो हमने वेन डायग्राम से आपको 11th क्लास में भी बताया था ना कि प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो होता है ई में से ई इंटरसेक्शन एफ माइनस कर देते हैं। देखो जरा एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दो इवेंट्स हैं, दिस इज ई और ये एफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश करके देखते हैं। तो पहले देखो इसमें हमारे पास ई है, इसको ई रहने दो ऐसे ही, दैट इज ई यूनिवर्सल से। और एफ डैश को करते हैं, व्हाट इज एफ डैश, ई है, एफ है, एफ डैश मतलब एफ को छोड़ के पूरा सारा सेट हो जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश को क्या लिखेंगे हम, ये है, दिस इज एफ डैश, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या हो जाएगा, देखो ई है और ये एफ है,
ई इंटरसेक्शन एफ डैश मतलब इन दोनों में कॉमन, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश इनमें कॉमन कौन सा वाला रीजन है? ये वाला रीजन। कौन सा? ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, तो शेडेड रीजन में कौन सा रीजन है देखो कॉमन? इसमें ये कंप्लीट है, इसमें ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो ये वाला पोर्शन जो है कॉमन है, ये वाला इसमें है बट इसमें नहीं है फिर, ठीक है, ये कॉमन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई में से ई इंटरसेक्शन एफ, इनमें से कॉमन माइनस कर देंगे ना, ई कंप्लीट है में से इंटरसेक्शन एफ कॉमन पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये ओनली ई आ जाएगा, तो ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। अब प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ। इसमें से प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमन लो, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ एफ, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एफ डैश, तो विच इज इक्वल टू आरएचएस। यही आपने शो करना था, ठीक है। तो इट वॉज इंटरसेक्शन एफ डैश, दिस वॉज इंटरसेक्शन एफ डैश, right? This was example number 30. Now we have example number 14. What is that? Let us see. Example 14. Fourteenth example, A and B are two independent events. Again, A and B are independent events. So therefore, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Number 1 equation. अब आपको क्या शो करना है? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वंस, वी हैव टू प्रूव प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। Probability of occurrence of at least A and B is equal to 1 minus probability of A dash into probability of B dash. This is what we have to show. अब probability of, now taking left hand side, यानी कि that is what we have to prove, probability of occurrence of at least A and B, कम से कम ए और बी का अकरेंस, जैसे ए है ये बी है, तो कम से कम ए और बी, कम से कम ए और बी का मतलब या तो खाली ए होगा या खाली बी होगा या दोनों होंगे, ठीक है। तो ये क्या स्टेट क्या होता है? ये पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? यूनियन। ये पूरा यूनियन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 minus probability of A naught intersection probability of B naught into B naught. So taking left hand side, this is probability of A and B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब A intersection B को हम क्या लिख सकते हैं? यूजिंग फर्स्ट, दिस कैन बी रिटन एज probability of A into probability of B using first, ठीक है। अब इसमें से आप probability of B कॉमन ले लेते हैं, probability of A plus probability of B take as common, 1 minus probability of A, ठीक है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं? probability of 1 minus probability of A को क्या ले सकते हैं? probability of A naught, यस, तो इसको हम ले सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट
प्रॉपर्टी ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ बी this can be written as property of A plus property of B into property of A naught अब आपने तो लाना है प्रॉपर्टी ऑफ A नॉट इंटू प्रॉपर्टी ऑफ B नॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट, और इसमें से 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट टेक एज कॉमन, तो दिस बिकम्स 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी, और 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी दैट कैन बी रिटन एज प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट. दिस इज RHS. दिस इज व्हाट वी हैव टू शो. तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए हैं. अब इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट लाइव क्लास में 13.2 एक्सरसाइज करेंगे. आपने बेटा यही सब काम करना है और मेरे को टाइमली सेंड कर देना है इस काम को, ठीक है. तो हम नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास में मिलेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.